أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ بہت مہربانی بہت کرم کرے ساجدہ آپ کے اوپر. جی آنسا پارا شیئر کیجئے. پارا شیئر ہو گیا؟ نہیں ابھی نہیں ہوا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی میں نے نا آیت نمبر 5 کو لے کے گرامر سے انالائز کرنے کے بعد نئے لیسن کو پڑھانا ہے کیونکہ جو آپ تک ریکارڈنگز آئیں گی اس میں یہ مسنگ ہوگا. ٹھیک ہے تو میں اب اس ریکارڈنگ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ البقرہ آیت نمبر 5 پارے کا ہمارا یہ پہلا رکوع ہے. آیت نمبر 5 سے ساجدہ تھوڑا سا اور نیچے. اولئک یہی وہ لوگ، یہ ہم علا اوپر، ہدن ہدایت کے ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، من سے، ربہم اپنے رب کی. اگر لغوی معنی دیکھیں نا تو بنتا ہے ان کے رب کی طرف سے، لیکن ان کے چونکہ ہمارا ہی ذکر ہے نا تو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اور اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ سب، المفلحون وہ سب فلاح پانے والے ہیں. واو یہاں پر اولئک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اشارے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہی وہ لوگ، ہم اس کو اسم اشارہ کہیں گے. ٹھیک ہے، اسم ہے اشارہ ہے اور جمع کا بھی ہے. اولئک جمع کا ہے. علی اوپر حرف ہے. حرف کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جوڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہمارے کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو جملے کو جوڑنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. ہم ان سے جملہ جوڑتے ہیں لازمی طور پر. ہم ان کو ایک منٹ ہے جائیے شاید میرا جی وا آ گیا ہے حرف عطف. اولئک پھر آ گیا ہے اسم اشارہ. اسم اشارے کو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ یہ معرفہ ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے. ہم وہ سب. ساجدہ آپ کا ہاتھ لگ گیا شاید. بس ال ہمیں بتا رہا ہے کہ معرفہ ہے، واو نون ہمیں بتا رہا ہے کہ جمع ہے اور درمیان میں آ گیا ہے فا لام ہا فلاح. فلاح ہم نے دیکھ لیا کہ فلاح پانے والے کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے یہ ہمیں معلوم ہو چکا. گرامیٹیکلی ہمیں اس پوری کی اینالائز ہم نے کر لیا ہے. ال اسم کی پہچان اور معرفہ کی پہچان. آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں. انا بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے یا وہ لوگ جو، کفرو جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علی اوپر، ہم ان کے. یہ علی اور ہم جو ہے نا یہ دو لفظ ہیں. ٹھیک ہے علی اور ہم یہ جڑ کر آئے ہیں اس لیے ایک شکل میں آئے ہیں. خا انذرتو، انذرتا یہاں تک ایک، ہم تیسرا. حمزہ جو شروع میں آ رہا ہے نا یہ خواہ یا آیا، ہم کہتے ہیں نا خواہ آپ یہ کام کریں یا نہ کریں تو یہ اس کے لیے آیا ہے. انذرتا آپ ان کو ڈرائیں. اللہ کے نبی سے چونکہ کہا گیا ہے نا اس لیے تا کو ہم نے آپ کہا ہے، ورنہ تا کا مطلب آخر میں تو ہے. انذرتا آپ انہیں ڈرائیں، ہم ان کو، ام یا، لم نہ،
तुंज़िर, शुरू में ता, तू की इलामत, हम, उन सबको, या आप ना डराएं उन सबको, ला नहीं, युमिनूना, वो ईमान लाएंगे। या शुरू में आ रहा है वो सब के लिए, वाव नून आखिर में आ रहा है जमा के लिए, और हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड आ जाएगा। आप देखिए कि इन्ना बिलाशुबा, जब किसी चीज में शक शुबा की गुंजाइश ना करनी हो, यानी साबित हो, पक्की हो वो बात, वहां पर इन्ना लाया जाता है। ठीक है, इन्ना लाया जाता है, ये हर्फ है। ठीक है, अल्लादीना, जिन्हों, सॉरी, हाँ यही है, अल्लादीना, जिन्होंने, अल से हमें पता चल गया मारफा है, और यानून से हमें पता चल गया जमा है। जिन लोगों ने, ये खास लोगों का जिक्र है क्योंकि ये अल के साथ है। कफरू, जिन्होंने कुफर किया, ये वाव अलिफ जो होता है ना, ये भी जमा के आखिर में आता है। ठीक है, जिन्होंने कुफर किया मींस कुफर करने वाले ज्यादा लोग हैं, जिन्होंने कुफर किया। काफरा, या को अगर काफ, इसका रूट वर्ड है काफारा, काफ, फा और रा। हम देखते हैं कफारा है क्या चीज, कुफर करना, इनकार कर देना, यानी उसने किसी चीज को दबा दिया, छुपा दिया। और एक मीनिंग्स ये भी है कि उसने नाशुक्री कर ली और उसने ईमान लाने से इनकार कर दिया। यानी सब किस्म के मीनिंग्स जो है ना, वो कफारा, काफारा में आते हैं। आप कुफर कर दीजिए, आप इनकार कर दीजिए, आप हकीकत को छुपा लीजिए, आप दबा दीजिए उस मामले को, वो आप कुफर ही कर रहे हैं। ठीक है, सवाउन, बराबर है। तनवीन हमें क्या बता रही है कि ये इसम है, और कौन सा इसम है, नकरा इसम है। ठीक है, बराबर है, सवाउन, सीन वाओ छोटी या इसका रूट वर्ड है, यानी कि तूलो अर्ज, यानी लंबाई चौड़ाई में, कदरों कीमत में, हर हिसाब से बराबर होना, कोई यानी कमी बेशी नहीं है उस चीज में ना, वो बिल्कुल बराबर हैं। अला ऊपर, हिम उनके, यानी उनके ऊपर बराबर है, कोई कमी बेशी नहीं है। आ, ख्वा, अंजरता, आप डराएं, अंजरता, आप डराएं, हम उन सबको, ख्वा आप डराएं उन सबको, अम हर्फ है, या लम नहीं ना, या ना, तुंजिर आप डराएं उनको, ता हमें बता रही है ना, तू के लिए है, अल्लाह के नबी के लिए है। ना डराएं हम उन सबको, जमा का, ला नहीं, यू मीनूना, या शुरू में अलामत है वो सब, वाव नून जमा, हमजा मीम नून अमन, वो अमन में नहीं आएंगे, वो ईमान नहीं लाएंगे। कुछ भी कर लें आप उनके साथ, वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी बिलाशुबा काफरों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डराना या ना डराना बराबर है, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। राब्ता कलाम है पिछली आयत से ही कि देखिए कि लोगों की ये दूसरी किस्म है। एक किस्म हमने पढ़ी है, वो कौन लोग हैं, जो अल्लाह ताला से डरते हैं, जो अल्लाह ताला की हर बात को मानने के लिए कोशिश करते हैं, मुत्तकी हैं, वो खुद भी डरते हैं, वो दूसरों को भी डराते हैं। अब ये वो हैं कि जिन्होंने तय कर लिया है कि चाहे कितने ही वाजे, कितने ही रोशन दलाइल उनके सामने क्यों ना आ जाएं, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के ऊपर ईमान नहीं लाएंगे। कुरैश मक्का का हाल बयान किया जा रहा है, और चूंकि कुरान पाक का खताब जो है ये हर वक्त के लिए है, ये उस वक्त भी था, ये आज के लिए भी है, ये कयामत तक के लिए है। तो उस वक्त जब बताया जा रहा है तो कुफार के लिए है, आज हम अब इसको अपने लिए भी जज करेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रबी रजी अल्लाह अन्हा ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि ये वो लोग हैं जो कुफर पर अड़ गए, और तर्जुमे में इसका इसीलिए है कि कुफर अपना लिया है, काफिरीन यानी कि काफिरून, यानी कि बस वो उन्होंने तहिया कर लिया है कि हमने इनकार करना ही करना है, कफारू। और वो लोग बस अब इसी मफहूम को के ऊपर अमल करेंगे, यानी कि जो भी हो जाए हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना।
जो शख्स नेमत को छुपाता है, यानी कुफर मतलब क्या है ना, हमने देखा कुफर का मतलब छुपाना भी है, हकीकत को दबा देना। तो जो शख्स नेमत को छुपाए, और नेमत भी कौन सी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सरापा नेमत, उसके बाद कुरान, अल्लाह ताला की किताब, तो इसको छुपा भी रहा है, इसका शुक्र भी अदा नहीं कर रहा, उस शख्स के फेल को कुफर कहते हैं, और कुफराने नेमत भी इसी से निकला है। तो सबसे बड़ा काफिर कौन है? अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की शरीयत और अल्लाह की नबूवत का इनकार करने वाला। कुरान मजीद में कुफर का लफ्ज कुफरान नेमत और कुफर बिल्लाह दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो कुफर के मायने भी यही आएंगे कि अल्लाह के रसूल और पैगंबर की बात की तस्दीक ना करना, और इनका कतई तौर पर दीन से होना मालूम होना, यानी मालूम है कि ये हक है, ये सच है, हक को दबाया जा रहा है। कुरान करीम ने अंबिया कराम की दावत को बकसरत डराने से ताबीर किया है। ये जो पुराने अंबिया के किस्से हमें बताए गए हैं ना, इनका मकसद भी यही है कि हम उनकी जिंदगियों को देखें और फिर डरें। ये हमें डराने के लिए हैं, हमें कोई मतलब हमारी कोई इंटरटेनमेंट का सामान नहीं है ये, कि अल्लाह के नबी को बताया गया कि लोगों के ये किस्से बताओ, बल्कि इसमें एक लेसन है, हमें डराया जा रहा है कि अगर तुम लोग भी ऐसे काम करोगे तो उनका अंजाम देख लो। इंसान की फितरत है कि बुरे किए मतलब इतनी जल्दी बुराई से नहीं डरता जितना किसी बुरे को देख के डरता है। आग जलाती है हमें पता है, लेकिन जब आग के जलने से नहीं इतना डरता इंसान, लेकिन जब किसी जले हुए इंसान को देखते हैं ना, और उसकी तड़प को देखेंगे, या आप कोई ऐसी बात सुनेंगे कि वो जल गया और इस तरह हुआ इसके साथ, तो फिर आपके ऊपर खौफ तारी हो जाएगा। इसीलिए ये तमाम किस्से सुनाए गए कि जिन लोगों ने तहैया कर लिया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात को नहीं मानना, वो कितना ही डराए अंजाम से, हमने नहीं डरना। वो कितना ही हमें क्यों ना आखिरत का खौफ दिलाएं, पिछली पिछली उम्मतों के किस्से भी सुनाएं हमें, उन उम्मतों का हाल भी बताएं, हमने नहीं डरना। हमने तो बस जो करना है करके छोड़ेंगे, और करना क्या है? कुफर करना है, हर सूरत हाल में कुफर करना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाना है। ये उनका मकसद था, ये उनका तहैया था। तो अल्लाह ताला ने भी फिर अल्लाह के नबी को बता दिया, क्योंकि अल्लाह ताला जानते थे उनके दिलों की हालत, उनकी कैफियत। अल्लाह को कैसे पता चल गया ना कि वो तो उनको डराओ ना डराओ बराबर है। अल्लाह ताला तो हमारे दिल के एक गुमान से भी जो है वो वाकिफ है। वो कैसे ना जान सकता कि ये अपने दिल में इतना बड़ा कुफर लेके बैठे हुए हैं। इन्होंने अल्लाह के नबी को, मेरे नबी को झुटलाना ही झुटलाना है। तो कलाम के जरिए अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया कि चाहे आप इनको डराएं चाहे ना डराएं, बराबर है इनके लिए। आप इनको हदायत दें ना दें, इनको कोई असर नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयत नंबर 6 को देख लेते हैं, बल्कि आयत नंबर 6 की दूसरी रिकॉर्डिंग भेजती हूँ।